A very good morning to all my dear students. Today we are here with our new poem, The Voice of the Rain, which is written by poet Walt Whitman. Walt Whitman was an American poet. But before reading about the poet Walt Whitman and the explanation of the voice of the rain, let me introduce what we will cover throughout the video. We will cover the central theme, the introduction to the poet, explanation of the poem, and the very difficult words which has just lie in this very poem. All these things will be covered during this video. Now let's start with the introduction of the poet Walt Whitman. He took born on 31st May 1819 in West Hill, New York, United States. Here the United States means the USA, United States of America. And he got died on 26 March 1892 in Camden, New Jersey, United States. Both of the places are the same. The birthplace and the died place was also the same in America. That's why he was just called as the American writer. Generally, his well-known poems or the collection of the poems were The Leaves of Grass and Song of Myself, Oh Captain, My Captain. These were generally the few of the poems which are just written by Walt Whitman, but there are so many in which we will find Walt Whitman as a proficient poet. Here are some of the awards goes to Walt Whitman for the illustration or for the working for the literary world. Here are the one of the award has been discussed as the Golden Kite Award for the picture book illustration. Remember one thing, students, at the time of his birth as well as his death, it was the time period of Industrial Revolution in America. Industrial Revolution means the occurrence of the machines and the industries were just in prevailed. They come in existence. And due to all these things, the chaos and the brutality and the less humanity has been prevailed because of these industrializations. So many of the people were just found themselves upset with this progress because industrialization has took up the place of human being as the working hands were less now and the machines were doing the thing on the behalf of humans. So it also generally create the less value of human being. So the most of the poet move towards the nature because industrialization also creates some of the pollution, not only the pollution but also the chaos in the mind of poet. So the poet like Walt Whitman, William Wordsworth, they generally move towards the nature. And here in this very poem, we will also discuss about the nature and its working and how a nature can heal any pain and its a healing power. Now let's begin our poem, The Voice of the Rain. Here is the stanza first. Let me tell you one thing, students. In this very poem, we will find so ancient words or the archaic words which had just prevailed in the 19th century, in the you can say 1800 to 1899 or before this also. So, for example, I will tell you in the first very line of the stanza, here it says, And who art thou? Here, art doesn't mean the art or the anything which is artistic. No, here is art means which is just an ancient word for ARER. This is for the ancient word R. Thou is also an ancient word for you. In the first of the line, here our poet asking to the rain. This is all about the rain, the voice of the rain. So here is the introduction of the rain, here in which our poet has been asking to the rain to be giving her the rain as a personification, as he asking him,
Who are you? Said I to the soft falling shower, which strange to tell, give me an answer. As he had translated, I am the poem of the earth, said the voice of the rain. Now I think you are able to understand what are the ancient words used by the poet mean. Now let me give you the explanation in Hindi so that you find yourself relatable with the words. And who are you? यहाँ हमारे कवि रेन से यानी बारिश से पूछते हैं आप कौन हो. Said I कौन है यहाँ पे? Poet. To the soft falling shower. Soft falling shower means the dropping droplets, the rain droplets जो धीरे धीरे मंद मंद गति में नीचे की तरफ पड़ रही हैं शावर के you can say in the face of shower. Which जो मैंने पूछा कि आप कौन हो, Who are you? Then एक strange है, मैं आपको जो बताने वाला हूँ that it give me an answer. Who give me an answer? या me कौन है? Me is the poet. उनको आंसर किसने दिया है? रेन ने, क्योंकि यहाँ उन्होंने क्वेश्चन किससे पूछा था? रेन से. As he had translated, अब जो मुझे रेन ने जो आंसर दिया था मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ कि मुझे क्या कहा वॉइस ऑफ द रेन ने. आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन. मैं कविता हूँ किसकी? धरती की. यहाँ आई कौन है? यहाँ आई है रेन, और रेन को आई का दर्जा दिया गया है. दैट मीन्स यहाँ पर्सोनिफिकेशन है. राइट. आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन. पोएम ऑफ द अर्थ मीन्स धरती की कविता. फॉर एग्जाम्पल एक पोम में मेनली हम जनरली क्या फाइंड आउट करते हैं? रिदम. वैसे ही एक रेन की रिदम होती है, वैसे ही रेन का एक प्रोसेस होता है जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं, जो हम साइंस में जनरली पढ़ते हैं. वाटर साइकिल में जनरली हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसमें रेन है वो किसी समुद्र से, डीप समुद्र से उठकर इवापोरेशन के रूप में क्लाउड फॉर्म करती है, और जो क्लाउड फॉर्म होते हैं उनसे बारिश होती है माउंटेन्स पर, और जो माउंटेन्स पर बारिश होती है वो पानी सीधा कहाँ जाता है? लैंड में, और लैंड से डायरेक्ट होकर वो डायरेक्ट वहाँ से कहाँ जाता है? डायरेक्ट सी में. तो जो हमारा ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एक रिदम होती है जिसमें रेन अपने प्रोसेस को बार बार रिपीट करती है. फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट गिवन कि वो ओशन से उठती है, क्लाउड की फॉर्म में आती है, वहाँ से बारिश होती है, वो वापस ज़मीन में चली जाती है, और वो ज़मीन का पानी वापस कहाँ चला जाता है? सी में. देन ये रिपीटेशन मोड पे होती है. तो ये एक पोएम है अर्थ की जो हमेशा रिपीट होती रहती है रिदम के साथ. ये एक रिदम है जो क्रिएट करती है अलग अलग साउंड और द अलग अलग क्रिएशन. So I hope that this stanza has been clear to you. Now let me conclude the next stanza, and here in the next slide you will find the explanation. Now let's see. The poem begins with the poet asking for the identity of the soft falling shower. Yes, he is just asking who are you. यहाँ पोइट उनसे पूछता है कौन हो तुम. किन से पूछता है? सॉफ्ट फॉलिंग शावर से यानी रेन से. Much to the surprise of the poet. पोइट को बहुत आश्चर्य होता है. The rain droplets replies. जो रेन है वो उसको रिप्लाई करती हैं, जो उसने क्वेश्चन पुट आउट किया उसका रिप्लाई दिया जाता है. Which the poet translate. वो जो उसको जवाब मिला उसको ट्रांसलेट करता है अपने रीडर्स को. As the rain in its own voice, वो अपनी जो रेन है अपनी खुद की वॉइस में कवि को बताती है that she is the poem of the earth. The rain is trying to say that as music and poetry gives pleasure to human beings and gives happiness to Mother Earth. Yes, here is also another thing we have just find. जिस तरीके से एक पोम या फिर एक सॉन्ग म्यूजिक ह्यूमन बींग्स को क्या देते हैं? प्लेजर देते हैं. उसी तरीके से रेन भी किसको हैप्पीनेस प्रदान करती है? मदर अर्थ को. Remember this, there are two meanings of the poem of the earth. धरती की कविता के दो मीनिंग हैं.
ache, the continuous circle, as well as that it gives the happiness to the mother earth for as like the music and the song, as the music also follow the rhythm and song also follow the rhythm, and this happiness also follow the rhythm for the mother earth. Now let's move towards the next. Here's a stanza 2. Here the poet says, eternal I rise impalpable out of the land. This I is rain. यहाँ हमें बारिश कह रही है, यहाँ हमें बारिश कह रही है that eternally means which is just unending, जो everlasting होती है. Rise, मैं rise करती हूँ impalpable which we cannot be touched, जिसे हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं. वो कहाँ से राइज होती है? आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. आई हैव जस्ट टोल्ड यू. वो सी से राइज होकर कहाँ जाती है? इवापोरेट होके वो क्लाउड बनता है उसका. क्लाउड बनने के बाद वो माउंटेन पर जैसे बरसात होती है, बरसात के बाद वो डायरेक्ट जो पानी है वो कहाँ जाता है? ज़मीन पे जाता है, और ज़मीन पे जाने के बाद वो डायरेक्ट कहाँ जाता है? सी में. तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. जैसे वो कहाँ से राइज होती है? लैंड से, देन बॉटमलेस सी से, and upward to the heaven. Upward to the heaven means in the form of evaporation. Evaporate. To heaven means the sky. Here heaven means sky. Whence. Whence is also an ancient word for from when. इसका मतलब क्या होता है? From where. कहाँ से उठती है? Vaguely form. Vaguely means होता है unclear. वो अनक्लियर यानी कि उसकी कोई शेप नहीं होती है, वो अनक्लियरली फॉर्म्ड होती है. ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम. भले ही वो ऊपर जाकर क्या हो जाती है? बादल की फॉर्म में आ जाती है, बट उसके अंदर जो ड्रॉपलेट्स है वो रहती तो सेम है. भले ही वो नीचे ना गिर रही हूँ, बट वो क्या है? सेम है. नाउ लेट मी गिव सम ऑफ द एग्जाम्पल. जिस तरीके से आप वाटर साइकिल के प्रोसेस को पढ़ते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से वो सारी चीज़ें क्या हैं? इटर्नल है, एवरलास्टिंग है. नेचुरल थिंग्स में जो रेन की यू कैन से प्रोसेस है वो इटर्नल होती है, इम्पैल्पेबल होती है, हमें दिखाई नहीं देती, जिसे हम टच नहीं कर सकते, बट महसूस होती है. और वो कहाँ से उठती है? बॉटमलेस सी से. कहाँ जाती है? हेवन यानी स्काई की तरफ. वहाँ से वो वेगली फॉर्म, बादल की फॉर्म में आ जाती है. वो सब कुछ चेंज कर देती है, बट फिर भी सेम रहती है ड्रॉपलेट्स. Here's the explanation. The poet says that the rain is an eternal process. ये एक eternal process है जो everlasting है, but it takes different forms at different times. It rises from the land and the deep in the form of intangible water vapors and goes up to the sky. There it takes an distinct shape in the form of clouds. Right? वही जो मैं आपको बता चुके हैं, the process of water cycle. Although it changes in the form or shape, its core matter remain the same. लेकिन ये भले ही शेप चेंज कर लेती है, लेकिन इसका कोर मैटर है वो वही सेम रहता है, वही यू कैन से वेटी ड्राई रहता है. सो सिंस वेपर एंड क्लाउड्स कंटेन वाटर, दे कैन गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर्स. अब जो क्लाउड्स हैं, वेपर्स हैं, उनमें जो वाटर है वो ट्रांसफॉर्म होकर किसी और तरीके से भी आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल वो जाने के बाद जैसे ही वो बारिश होती है तो वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में धरती में मिल जाता है. द वर्ड इम्पैल्पेबल एंड द इटर्नल इंडिक्स दैट नेचर इज नॉट फुली अंडरस्टूड एंड सम पार्ट्स ऑफ इट ऑलवेज रिमेन बियॉन्ड आवर रीच. यानी कि इसका इटर्नल और इम्पैल्पेबल का मतलब ये है कि आप चाहे भले ही प्रकृति को कितना भी जान लो, लेकिन कुछ पहलू आपके ऐसे रह जाते हैं जिन्हें अंडरस्टूड कर पाना बहुत ही मुश्किल है, या फिर हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज़ रह जाती है जिसे हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. सो ऑल द नेचुरल थिंग्स आर हीलिंग एंड दे आर आल्सो द इम्पैल्पेबल, जो आपको दिखाई नहीं देती, टच नहीं कर सकते, और इटर्नल होती हैं जिनका अंत नहीं है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा. हियर आई मीन्स rain. Here again rain says, I descend to leave the draughts of atomized dust, layer of the globe, and all that in them without me were seeds only talent unborn.
आई मीन्स रेन अपने आप को कहती है डिसेंट, मैं अपने आप को गिराती हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है जिस तरीके से घटता क्रम और बढ़ता क्रम, राइट। डिसेंड मीन्स नीचे की तरफ आना। टू लिव, लिव मीन्स होता है वॉश, क्या होता है वॉश। वॉश किसे करती है, द ड्रॉट मीन्स क्या होता है, जहाँ सूखा पड़ा हुआ होता है। एटम इज होता है द स्मॉलर द टाइनी पार्टिकल ऑफ एनीथिंग। देन डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, ग्लोब मीन्स यहाँ क्या है अर्थ। अब मैं क्या करती हूँ, मैं जब नीचे की तरफ आती हूँ, उसने प्रोसेस बता दिया कि वो इवापोरेट होकर जब क्लाउड के फॉर्म में आती है और रहती सेम है। लेकिन जैसे ही मैं डिसेंड होती हूँ यानी कि रेन की फॉर्म में नीचे आती हूँ, तो मैं वॉश कर देती हूँ किन चीज़ों को, ड्रॉट्स को, एटमीज को, डस्ट लेयर्स को, अर्थ की, जो अर्थ पे गंद जमा हुआ है उसको सब साफ कर देती हूँ। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, जब जब तक मैं नीचे डिसेंड नहीं होती हूँ तब तक उनके जो धरती के अंदर के बीज हैं वो सिर्फ बीज रहते हैं, वो कभी भी क्या नहीं हो सकते, बोर्न आउट नहीं हो सकते। लेटेंट अनबोर्न, वो कैसे रहते हैं, अनबोर्न रहते हैं। तो हमारी बारिश, जैसे ही बारिश होती है तो कुछ नए पौधे ऐसे होते हैं जो बारिश के बाद ही बाहर आते हैं, क्योंकि जनरली हम वाटर को हर एक इलाके में खुद नहीं पहुंचा सकते। इट्स बेसिकली अप टू द साइकिल ऑफ द रेन, जो हर जगह बारिश को यानी पानी को पहुंचाती है और बहुत सारी सीड्स हैं वो अपना नया जन्म लेते हैं। नाउ हियर इज द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन इज सेज द ड्रॉप्स रेन ड्रॉप्स पोर डाउन, पोर डाउन मीन्स जो वो नीचे की तरफ गिरती है, फ्रॉम अबाउट टू वॉश अवे ड्रॉट्स, वो किन को, ड्रॉट्स को और डस्ट लेयर को, जो किसको इन्वेलप करे हुए हैं, किसको कैद किए हुए हैं, अर्थ को, उसको धो देती है। इट सेटिस्फाइज द थर्स्ट ऑफ द ड्राई अर्थ एंड हील एवरीथिंग दैट इज डिगार्डिंग एंड इज लाइंग लाइफलेस। ये हर एक उस चीज़ को, यानी कि ये सबसे पहले धरती की प्यास बुझाती है, हील करती है हर एक चीज़ को, हर एक डिग्रेड चीज़ को जो लाइफलेस पड़ी हुई है धरती पे। यानी कि ये एक जीवन देने वाली एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हज़ारों पेड़ पौधे अपना नया जन्म लेते हैं। सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, ह्यूमन बींग्स भी इसकी छाया में अपने आप को बहुत ज़्यादा रिफ्रेश महसूस करते हैं। द शावर रिमूव द डस्ट पार्टिकल एंड मेक द अर्थ क्लीन। अब शावर से जो रेन है वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं और अर्थ को क्लीन कर देते हैं, और इससे अर्थ काफ़ी ग्रीनरी नज़र आती है। द रेन आल्सो हेल्प इन द जर्मिनेशन ऑफ द सीड। जर्मिनेशंस मीन जब सीड को जर्मिनेट किया जाता है, यानी कि जब उसे आवश्यक पोषण दिया जाता है ताकि वो ग्रोन आउट हो सके, उसे जर्मिनेशन कहा जाता है। विच वर लाइंग डोमेंट ड्यू टू ड्राई स्पेल, वो किस जो कि जो धरती है, वो जो सूखी हुई धरती है उसकी वजह से वो अपना यू कैन से पूरा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, और उस सूखी हुई धरती पर जैसे ही रेन ड्रॉप्स पड़ती हैं वैसे ही हमारा जो टाइनी सीड्स हैं वो बाहर आते हैं और अपना नया जीवन स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब हमें जो यहाँ सीखने को मिल रहा है वो ये है कि जनरली हमें वर्ल्ड विटमैन ये कन्वे करना चाहते हैं कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो सिर्फ पड़ती ही नहीं है, वो सिर्फ हमें गिरती हुई दिखाई देती हैं सब, जबकि वो बहुत ज़्यादा कुछ करती हैं हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, इवन पौधों के लिए, एनिमल्स के लिए। वो किसी चीज़ में क्या नहीं करती हैं, भेदभाव नहीं करती, डिस्क्रिमिनेट नहीं करती हैं। वो अर्थ को सेटिस्फाई करती हैं, लाइफलेस चीज़ों को लाइफ प्रदान करती हैं। बट वट वी आर डूइंग the cutting the trees, deforestation and all these things, these stupid things led to the less of rain, right? So यहाँ अगर हमें पता चले कि किस तरीके से सारी चीज़ें टोटली डिपेंड करती हैं सन, वाटर, सॉइल एंड अदर 5 एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ पे, तो हम उन्हें अनक्लीन ना करें, अपने अर्थ को ग्रीन रखें, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और बिकॉज ऑफ दिस द रिवोल्यूशन और द एवोल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आज का अगर हम एग्जांपल लें तो आज अगर हमारी अर्थ है वो सांस नहीं ले पा रही है, और सांस नहीं ले पा रही है तो बहुत जगह सूखा पड़ रहा है, बहुत जगह तूफान आ रहे हैं, बहुत जगह ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई। तो बहुत सारी चीज़ें ना, जब कोई भी संतुलन हिल जाता है 5 एलिमेंट्स का, तभी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वी जनरली कन्वे द मैसेज दैट वी हैव टू प्रिजर्व ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द नेचर अर्थ। Now here is the first stanza, and here says, and forever
बाई डे एंड नाइट। मैं बहती हूँ यानी मैं अपना यही कार्य, ये प्रोसेस डे एंड नाइट करती हूँ। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। मैं जहाँ से पैदा होती हूँ मैं वहीं से वापस आती हूँ। जैसे वो समुद्र से उठकर क्लाउड बनने के बाद यू कैन से माउंटेन से नीचे आकर वो धरती से आई और धरती में जाकर वापस कहाँ जाती है वो, सेम है। तो जहाँ से उसकी लाइफ स्टार्ट हुई वो वहीं पर वापस चली जाती है उसके खुद के ओरिजिन पे। ओरिजिन मीन्स जहाँ से उसका सोर्स था, चाहे वो लैंड हो चाहे वो बॉटमलेस सी हो। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। और हर बार की तरह मैं हमेशा किस चीज़ को, अपने अंदरूनी चीज़ों को ब्यूटिफाई करती हूँ और अर्थ पे ह्यूमैनिटी को, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, नेचर को पूरी तरीके से ब्यूटिफाई करती हूँ, उसको ब्यूटीफुल बनाती हूँ and beautify it. Now here is a line which I just given in the bracket. This was just tell or you can say by our poet. वो यहाँ पर अब कंपैरिजन कर रहा है फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। जिस तरीके से एक गाना अपने बर्थ प्लेस पे जाकर इशू होता है, इशू मीन्स ओरिजिनेट होता है, स्टार्ट होता है अपने बर्थ प्लेस से। बर्थ प्लेस किसका होगा, पोइट का, जहाँ पोइट ने उसको या फिर सिंगर ने उसको जन्म दिया है, स्टार्ट किया है। आफ्टर फुलफिलमेंट, जैसे उसकी बहुत ज़्यादा, यानी कि एक सॉन्ग है वो अभी अभी रिलीज़ हुआ है और रिलीज़ होने के बाद आप उसे देखेंगे कि बहुत सारे शोज़ होते हैं, शोज़ होने के बाद आपको अवार्ड्स दिए जाते हैं। देन वो उसकी खुशी जो है, जो आपने लोगों को दी है, वो आपको अवार्ड के रूप में वो खुशी मिलती है, राइट। तो वंडरिंग रैग्ड और अनरैग्ड, रैग्ड मीन्स कोई भी वो गाना चाहे वो सराहा गया हो या ना सराहा गया हो, बट डुलाई विद द लव रिटर्न्स, बट वो प्रॉपरली हमेशा लव रिटर्न्स के यानी प्यार के साथ वापस आता है। वही चीज़ है जैसे रेन जो है वो अपने रियल ओरिजिन से उठकर वापस वहीं जाती है विद बाय मेकिंग अदर प्योर्स, हम सभी को प्योर करके वो वापस अपने ओरिजिन में जाती है और फिर से वही प्रोसेस शुरू कर देती है। ये यहाँ पे जो है यू कैन से कंपैरिजन किया गया है रेन की प्रोसेस का और सॉन्ग की प्रोसेस का। सॉन्ग भी दूसरों को बहुत यू कैन से क्या करता है, चीज़ों को काफ़ी प्रोसेसिंग बनाता है, मेलोडियस बनाता है, लोगों को बहुत आनंद आता है सुनने में। और जो पोएट या सिंगर अपने सॉन्ग से दूसरों की चीज़ों को फुलफिलमेंट करते हैं, उन्हें अच्छा आनंद देते हैं, खुशियाँ देते हैं, वही खुशी वापस घूम कर किसके पास आती हैं, उस पोएट के पास जिसने उस सॉन्ग को स्टार्ट किया था। सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लास्ट द पैराग्राफ. Many of the things we have just discussed, but now here we will discuss that the rain is involved in continuous process. I told you, giving life on earth by providing water to dormant seeds and making the earth more beautiful and full of greenery. Rain helps in enhancing the beauty of earth, as in the absence of water, everything turns dull or lifeless and dust accumulates everything. हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि किस तरीके से रेन है उसका कंटिन्यू प्रोसेस है और वो अर्थ को हमेशा प्रोवाइड करती है एक रिफ्रेशिंग और ब्यूटीफुल और फुल ऑफ ग्रीनरी फुलफिलमेंट्स। और वो किस किस को जो है ना वाटर देती है, यानी कि लाइफ देती है। जैसे हमने पढ़ा था सीड्स को, अर्थ को, ह्यूमन बींग्स को, सभी को वो एक लाइफ देती है। देन रेन हेल्प्स इन द इनहेंसिंग द ब्यूटी ऑफ द अर्थ। इट मीन्स अर्थ को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने का काम कौन करती है, रेन। अगर इसके अब्सेंस में वाटर नहीं हो तो हर चीज़ क्या हो जाएगी, एवरीथिंग टर्न्स टू द डल एंड लाइफलेस एंड डस्ट अकोमुलेट्स एवरीवेयर। और अगर ये ना आए तो हर जगह जो मिट्टी है, धूल है, हर चीज़ हर जगह फैल जाएगी और हर एक चीज़ लाइफलेस हो जाएगी। नाउ द लास्ट टू लाइन्स इन द पोइट्स ओन वर्ड एंड हिज रिफ्लेक्शन अपॉन द आंसर गिवन बाय द रेन। अब लास्ट टू लाइन जो पोइट्स अपने वर्ड्स में कहता है, जो हमने ब्रैकेट में क्लोज करके मतलब अभी पढ़ी थी, वही चीज़ हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। द लास्ट टू लाइन, जो लास्ट टू लाइन है पोइट ने अपने वर्ड्स में कहा है, एंड इज रिफ्लेक्शन अपॉन द आंसर गिवन बाय द रेन। उसने उसी आंसर को रिफ्लेक्ट करके अपनी भाषा में एक यू कैन से गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सॉन्ग, उस चीज़ को क्या किया है, आंसर दिया है। द पोएट ऑब्जर्व दैट द लाइफ ऑफ द रेन इज सिमिलर टू दैट ऑफ सॉन्ग। एक रेन की लाइफ किससे सिमिलर होती है, सॉन्ग से। सॉन्ग और पोएम इज क्रिएटिव एट इट्स बेस्ट। दोनों ही अपनी
लेवल ऑफ बेस्ट पे क्रिएटिव होते हैं एंड इट हैज़ पावर टू काम, हील, रीजनरेट, ट्रांसफॉर्म एंड थ्रिल इन द सेम वे। यही है, दोनों में ही हीलिंग पावर, काम पावर, दूसरों को रीजनरेट करना, हैप्पीनेस देना, ये सारी चीज़ें करना, ट्रांसफॉर्म वगैरह सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें बड़े बखूबी से करते हैं। इन द सेम वे रिपीटेड evaporation एंड कंडेंसेशन प्यूरिफाइज द रेन। जो प्रोसेस है इवापोरेशन का और कंडेंसेशन का, जो हम साइंस में पढ़ते हैं, तो प्योरीफाई करता है वो रेन को। द एंटायर एनवायरमेंट गेट्स ड्रेंच्ड इन द रेन। सारा इन्वायरमेंट रेन में धुल जाता है। डस्ट पार्टिकल सेटल डाउन एंड देयर इज ग्रीनरी एवरीवेयर। जो डस्ट पार्टिकल जो हमारी ग्रीनरी ऊपर यू कैन से अकेमुलेट थे, बैठे हुए थे, वो धुल कर नीचे आ जाते हैं और सारी जगह ग्रीनरी फैल जाती है, विच मेक्स द होल अर्थ ब्यूटीफुल लुक एट। जो ये सब होने के बाद अर्थ है वो बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देती है, बहुत ही ग्रीन दिखाई देती है। द पोएट therefore draws the parallel between the rain and the music, as both have rhythm and ability to thrill. Both of them regenerate the beautify life. यही जो मेन कॉमन एलिमेंट्स जो निकाले हैं हमारे पोइट ने, वो रेन और म्यूज़िक में निकाले हैं। तो उन्होंने कहा है कि दोनों में रिदम है, एबिलिटी है, लोगों को रीजनरेट करने की, उनके अंदर चेंजेस लाने की एबिलिटी है। तो बोथ ऑफ देम रीजनरेट एंड ब्यूटीफाई द लाइफ। पोइट यहाँ कहना चाहता है कि किस तरीके से पोइट जो है वो ब्यूटीफाई करता है लाइफ को, सॉरी जो रेन है और जो सॉन्ग है, म्यूज़िक है, वो किस तरीके से ब्यूटीफाई करते हैं लाइफ को। So this is all about the poet and the poem. In the generally we have just discussed that rain जो है, बारिश जो है, वो हमारे अंदर एक चेंज ही नहीं बल्कि पूरी अर्थ पे चेंज लेकर आती है। इसलिए हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, हमें उनकी कद्र करनी चाहिए, और इवन वी शुड नॉट इवन गो फॉर द हार्शमेंट टुवर्ड्स द नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज हमें हमेशा अच्छी चीज़ें देते हैं, हमें हीलिंग पावर देते हैं, कामनेस पावर देते हैं, रीजनरेट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, दे प्रोवाइड अस अ थ्रिल इवन। तो हम उन्हें क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो डिफॉरेस्टेशन को अवॉइड करें। और डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा था, पेड़ों की कटाई क्यों हो रही थी जिस टाइम पे उन्होंने ये पोएम लिखी? क्योंकि उस टाइम पे इंडस्ट्रीज़ लग रही थी, और आज भी हम देखें तो इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए बहुत सारे पेड़ों की कटाई आज भी हो रही है। तो पोइट जो है वो इनडायरेक्ट वे में इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्टॉप करने और अफॉरेस्ट्रेशन को लागू करने की अपील कर रहे हैं, जिससे हम रेन को जो है वो प्रिवेल कर सकें और जिससे हमारी अर्थ जो है वो फिर से सांस ले सके। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द लिटरेरी डिवाइस। Literary device refers to the devices which are just used by the poet to adorn its poem. So अपनी पोम को यानी कविता को सुंदर बनाने के लिए कुछ डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, उन्हें ही हम लिटरेरी और पोएटिक डिवाइसेस कहते हैं। यहाँ हम बात करें पर्सोनिफिकेशन की। द फर्स्ट वन इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देते हैं, यानी कि ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देते हैं। तो जहाँ रेन को है पूरी पोएम में एज ए ह्यूमन क्वालिटी ही दिया गया है। जैसे वो कहती है कि आई डिसेंड, मैं गिरती हूँ। अब जो रेन है वो ह्यूमन बीइंग की तरह गिर तो नहीं सकती, वो वॉक तो नहीं कर सकती, वो देख तो नहीं सकती, राइट वो, लेकिन वो स्पीक आउट कर रही है पूरी रेन में। तो वो पूरी पोम में तो रेन क्या हुई, एक ह्यूमन बीइंग की तरह बोल रही है। तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर पूरी पोएम में है। नेक्स्ट द मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? जनरली व्हेन वी कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स डायरेक्टली, ओके, विदाउट एनी यूज़ ऑफ लाइक एंड एस। तो मेटाफर जो है यहाँ पे कहता है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। अगर कोई अपने आप को अर्थ की पोएम बोल रहा है, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि रेन इज़ जस्ट लाइक ए पोएम ऑफ द अर्थ, राइट, हम ये कह सकते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट पोएम ऑफ द अर्थ बोल रहे हैं, दैट मीन्स वो है ही। तो यहाँ पे पोएम ऑफ द अर्थ जो है वो एग्जाम्पल है। लेट मी गिव द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर, अनदर एग्जाम्पल ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल आई विल से, एक तो मैं ये कहूँ कि चांद जैसा चेहरा, तो मैं ये कहूँ, या फिर मैं डायरेक्ट कह दूँ तुम चांद हो। तो जहाँ मैं कहूँ तुम चांद हो डायरेक्टली, तो वह मेटाफर हो गया। और अगर मैं जहाँ ये कहूँ तुम्हारा चांद जैसा चेहरा है, तो वहाँ सिमिली हो गया, राइट। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, द पोम ऑफ द अर्थ डायरेक्ट
कहा गया है रेन को. The poet uses a metaphor to compare how the rain leaves the ground to come back in the ground, giving back much like a person who leaves its home only to come back after fulfilling its journey. Metaphor भी वही है. Now here is the parallelism of the simile. Simile means also the comparison between the two things, but with the use of like and as. यहाँ पे हमें पता चलेगा इन द लास्ट 2 लाइन्स में जब म्यूज़िक और सॉन्ग को कंपेयर किया जा रहा है कि जो रेन है वो किसके तरीके से है, पैरेलिज्म शो किया गया है. उसने बताया है कि किस तरीके से रेन और सॉन्ग दोनों ही एक जिस तरीके से हीलिंग पावर अडोर करते हैं. नाउ हियर इज़ द हाइपरबोली. हाइपरबोली मीन्स व्हेन यू एक्सजरेट समथिंग, जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो. अब जैसे यहाँ बोला गया बॉटमलेस सी. भाई समुद्र में कहीं तो बॉटम होता ही है, राइट, कहीं तो उसका तल होता ही है, बट यहाँ में बोला गया बॉटमलेस सी, और बॉटमलेस बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला गया शब्द है, तो यहाँ पर हमें देखा कि यहाँ पर यूज़ हुआ है. नेक्स्ट इज इमेजरी. इमेजरी क्या है? इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम, सॉफ्ट फॉलिंग शावर. या इमेजरी मतलब होता है जब हम कोई चीज़ इमेजिनेशन स्टार्ट कर देते हैं, हर एक चीज़ में हमें एक इमेजिनेशन यानी एक सीन जो है वो चलता हुआ दिखाई देता है. और जैसे ही आप इस पोम के थ्रू आउट होंगे और इसे खुद एक बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपके सामने एक प्रोसेस चल रहा है. नाउ हियर इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, voice of the rain. Central idea means, I will tell you here, central idea means convey the theme. So the poem of the voice of the rain which is written by Walt Whitman signifies, क्या signify करती है, क्या महत्व दिखाती है? Eternal role. Eternal role किसका? रेन का, जो प्ले करती है नर्टरिंग, क्वेंचिंग एंड प्योरीफाई द वेरियस एलिमेंट ऑफ द अर्थ. जो अर्थ को प्योरीफाई करती है, उसे नर्टर करती है, पालन करती है, पोषण देती है अर्थ को, वो इटर्नल रोल. जो एवर लास्टिंग होता है वो कभी भी अपनी ड्यूटी से ऑफ नहीं होती, वो हमेशा अर्थ के लिए अपनी प्योरीफाइंग यू कैन से एक्सपर्टिज्म को साथ रखती है, उसे नर्टर करती है. द रेन रिटर्न टू द फेवर, the rain returns the favor to its place of origin, from its rises unseen from the depth of the water and from the rain. This is all the kind of synopsis and the central theme of this very poem. वो ये कहता है कि रेन जहाँ से उठती है वहीं पर अपने ओरिजिन में वापस जाती है, क्या करके? पूरी अर्थ को क्लियर करके वापस अपनी ही जगह लौट जाती है. The rain itself is explaining to the reader about its origin. अब इस पोम में जो रेन है वो खुद अपने बारे में एक्सप्लेन कर रही है रीडर को कि वो कहाँ से उठती है, क्या वर्क करती है और क्या उसका साइक्लिक मूवमेंट है. देन ही कंपेयर, ए कंपेरिजन आल्सो बीइंग ड्रॉन बिटवीन द रेन एंड द म्यूजिक एज बोथ देम मेक द वर्ल्ड मोर लाइव एंड रिटर्न टू देयर प्लेस ओरिजिन आफ्टर द फुलफिलिंग ऑफ देयर पर्पस, राइट. हर गाना, हर रेन की बूंद अपने जगह वापस आ जाती है अपना काम पूरा करके, लोगों को हील करके, लोगों को कामनेस दे के, लोगों को क्वेंच करके, नर्टर करके और हर चीज़ को प्योरीफाई और ट्रांसफॉर्म करके वापस आ जाते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोम एंड वी हैव जस्ट कवर्ड ऑल द थिंग्स वी हैव जस्ट डिस्कस्ड बिफोर. I hope you have got all the main points and ideas related to the poem. So if you feel any kind of query, you can comment me on the box so that we can improve your questionings and also give you the answer on the basis of things. So here is all about the poem, The Voice of the Rain, in which Walt Whitman tried to make ourselves so much relatable to the nature, which has just the healing power, rejuvenating power, transformation, and many more. So let's move towards the starting and the line of the Walt Whitman. Thank you. Meet you in the next video.